Yes, so the 65th question is Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan aims at A. Provide antenatal services to all pregnant women in their second or third trimesters of pregnancy. Medical checkup on 9th of every month. Testing blood pressure, sugar level, weight, and hemoglobin will be free of cost. Medical checkup will be done only in government hospitals. बताओ options ABC, BCD, ACD, ABD. मैम ABC। ABC. ओके, डी क्यों नहीं लगता आपको? मैम इसमें ये बोला गया है कि उनकी मेडिकल जांच केवल सरकारी अस्पतालों में की जाएगी। ये तो नहीं है ना कि मतलब केवल लिख दिया है इस वजह से कि ओके वो तो इंसान का मन होता है कि ओके, यू आर सेइंग कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है थोड़ी सी। हो सकता है कोई गवर्नमेंट स्कीम जो है वो ये भी बोल दे कि आप प्राइवेट में फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके करवा सकते हो गवर्नमेंट के खाते में, है ना? तो बाकी और कोई? एम आई ऑडिबल? बीच में शायद हो गया था। एम आई ऑडिबल? यस मैम ऑडिबल। तो मुझे लग रहा है मे बी, पता नहीं, आई हैवंट रेड अबाउट दिस स्कीम। मुझे लग रहा है शायद इसका बी नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर। बाकी समवन इज सेइंग एसीडी। Ma'am, I think option B is also, it's not that sure. I mean, mentioning the date of every month, I don't think Yeah, acts really work like that. that is I'm also confused about that. yeah, I'm also thinking it may be incorrect, but let's see the answer, okay? मेरे हिसाब से बी नहीं होना चाहिए इसका, बट आई एम नॉट श्योर। दिस इज 045। इसका 1 है, ABC। ओके, तो रोमा यू वर राइट ओनली कि भाई इस एटलीस्ट इस स्कीम के अंडर तो ऐसा है कि भाई आप जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चेकअप करवा सकते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, ठीक है, ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। सो इसका आंसर है ABC, provide antenatal services to all pregnant women in their second or third trimesters of pregnancy. Medical checkup on 9th of every month, I don't know ये कितना feasible है. Testing blood pressure, sugar level, weight and hemoglobin will be free of cost. Alright, so the answer is ABC only. Then next question, which of the following books responded to those educational and political theorists of the 18th century who believed that women should not receive a rational education? Should not receive a rational education. 18वीं सदी के ऐसे कुछ theorists होंगे, ठीक है, जो कि हमने पढ़े भी हैं कौन कौन से हैं, जिन्होंने ये माना कि भाई औरतों को रैशनल एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए। अगर नोट्स का पहला पेज याद करोगे तो आपको याद आएगा वो कौन से लोग थे जिन्होंने बोला कि औरतों को एजुकेशन बेशक दे दो, बट ऐसी कोई रैशनल एजुकेशन नहीं जो कि बाकी मेन को उस टाइम के ऊपर दी जा रही थी, बल्कि ऐसी जो कि उनको उनके हस्बैंड्स या सन्स की ड्यूटीज को में हेल्प करने के लिए उनको अलाउ करे, इस तरह की एजुकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल निटिंग की एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपके नोट्स का आई थिंक सेकंड यूनिट का फर्स्ट पेज है, वहां पे ये दिया हुआ है। तो उन थियरिस्ट्स को इनमें से कौन सी बुक थी जो उन थियरिस्ट्स को काउंटर कर रही थी कि भाई नहीं, वुमेन को रैशनल एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए? सो वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन, केट मिलेट्स सेक्सुअल पॉलिटिक्स, मैरी वोllstonecraft's A Vindication of the Rights of Women, Simone de Beauvoir's The Second Sex. Ma'am, it's Mary Wollstonecraft's A Vindication of Rights of Women, because 18th century liberal philosophers were talking about how women were considered as second-class citizens and that education should be as per the needs of men. So the first liberal feminist was Mary Wollstonecraft who talked about that.
Excellent. Okay. So the answer should be 3 only. Let's check. 003. यही है. मैरी वोllstonecrafts, A Vindication of the Rights of Women. बाकी दो लोग कब पब्लिश हुई थी ये बुक, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन? रोमा? 1792। 1792. गुड. ठीक है. तो वी नो बिल्कुल 18th सेंचुरी के एंड के ऊपर ये बुक पब्लिश हो रही है. एंड आपके नोट्स में डिटेल में दिया हुआ है whatever मैरी वोllstonecraft argues for. ठीक है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन. Then we have which one of the following equated quotas for women to, what is this, Janana Dabba. Okay. Which one of the following equated quotas for women to Janana Dabba? Amartya Sen, Lata Mani, Madhu Kishwar, Aruna Roy. Any idea? मधु किश्वर होगा। Okay. आपने पढ़ा इस बारे में? इसमें मतलब ये सब इन सबों का नाम नहीं, मतलब का नारीवाद में उतना नहीं आता है जितना कि मधु किश्वर का है। नारीवाद में इसका नाम आता है इस वजह से, लेकिन ये पढ़े नहीं है, बट मधु किश्वर का नाम आता है नारीवाद में इस वजह से लग रहा है। और कहाँ पे नाम आता है मधु किश्वर का? एटलीस्ट जो चीजें हमने पढ़ी है. अमर्त्य सेन तो इकोनॉमिस्ट, ये सब तो अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट थे। इन दोनों का लता मनी और अरुणा राय का तो नाम सुने हैं, बस लता मनी का नहीं सुने हैं, इस वजह से। लता मनी के बारे में भी पढ़ लेना. ठीक है. ओके. हो सकता है मधु किश्वर, किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है. बिकॉज इफ यू सी दिस इज लाइक बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से चीजों को समझाना. ठीक है. मधु किश्वर कम्स फ्रॉम दैट हिंदी बेल्ट, राइट. उनकी आई थिंक एसटी वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के जो एक केस हुआ था उसमें मधु किश्वर का रोल था. मधु किश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस था. ठीक है. आपके नोट्स में इंक्लूडेड है, उसको देख लेना जा करके. तो हाँ, अगर ये लॉजिक लगाएं तो मुझे भी लगता है कि मे बी इसका 3 हो सकता है. तो 0243 है. सी बट आई वाज टेलिंग यू गाइस द अदर डे, कॉमन सेंस एंड लॉजिक. ठीक है. उससे मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो निकल जाते हैं. ठीक है जी. Then we have and who will make the chapatis is the name of a study of all women panchayats in Maharashtra. The title of a forthcoming movie on women in Panchayati Raj institutions, a comprehensive study of Panchayati Raj institutions in India, a patriarchal comment directed at women who seek employment outside the household. बताइए. आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कहीं तो किया था, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन. इसका 3 लग रहा है, बट नॉट श्योर मैं। ओके. देखो इतना तो मानोगे कि 4 तो नहीं होगा, है ना? क्योंकि कोई भी मतलब ये देख के पता चल रहा है यार. अ पेट्रियार्कल कमेंट डायरेक्टेड एट वुमेन हु सीक एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द हाउसहोल्ड. ठीक है. अब ये तो बाकी जगहों पे भी लग सकता है ना, कि अब कुछ भी काम करने चलोगे तो फिर यही होगा. और कोई इतना ज्यादा हमने तो कोई नहीं सुना कि इतना ज्यादा एंट्रेंस्ड कोई कमेंट है जो कि एग्जाम में आ जाए. कई बार बोल भी दिया जाएगा, कई बार नहीं भी बोल दिया जाएगा. तो 4 तो ऐसी बना बनाया सा ऑप्शन लग रहा है, ये तो नहीं हो सकता. ठीक है. अब देखो, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, नोवेयर डज द ऑप्शन मेंशन एनीथिंग अबाउट वुमेन. ठीक है. और ये जो है ये डायरेक्टली जेंडर रोल्स के ऊपर ही स्लोगन है या कमेंट है, जो भी है. ठीक है. तो ये भी नहीं हो सकता. अ टाइटल ऑफ अ फोर्थकमिंग मूवी ऑन वुमेन इन पीआरआईज, और एक बचता है स्टडी ऑफ ऑल वुमेन पंचायत इन महाराष्ट्र. दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा प्लॉजिबल लगता है? ये नहीं लगता क्या? स्टडी ऑफ ऑल. Yeah, it's one.
Okay, आई थिंक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं, आई डोंट रिमेम्बर किया कब था, बट आई थिंक वी हैव डन दिस। ओके, 0261 है इसका, ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल वुमेन पंचायत इन महाराष्ट्र। अब मुझे तो आंसर पता था, ठीक है, दैट्स व्हाई आई कुड यूज दिस लॉजिक, लेकिन आप लोगों को ना भी पता हो तो भी आप थोड़ा सा सोच करके इसको लगा सकते हो। ओके, then we have the key strategies for women's agency in the 12th plan. Okay, we have done 5-year plans, right? 12th plan have been identified as economic empowerment key strategies, okay, for women's agency. So ध्यान से, key strategies for women's agency in the 12th plan have been identified as economic empowerment, enabling legislations, women's participation in governance, and strengthening research on women. बताइए। ये देखो, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि विमेन स्टडीज के क्वेश्चन जो है ना, वो उसके लिए मटेरियल कहाँ से लाया जाए। वी हैव डन 5-year प्लान। ACD। हाँ, वी हैव डन 5-year प्लान्स इन डिटेल, ठीक है, और मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स छाने थे उसके लिए, बिकॉज 5-year प्लान्स के ऊपर और कहीं पे भी मतलब इतना ज्यादा, एटलीस्ट जो पुराने वाले प्लान्स हैं उनके रिगार्डिंग ज्यादा मटेरियल नहीं मिलता है, ठीक है। तो और उसमें भी 12th प्लान में आई कुड नेवर फाइंड कोई ऐसी डॉक्यूमेंट, या तो मैं पूरा प्लान ही पढ़ने बैठ जाऊँ, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन कोई भी ऐसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मिलती जहाँ पे आपको ये लिख करके दे देते कि ये स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है। तो वो चीज है, फिर इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा तुक्के मारने पड़ते हैं ऐसे एग्जाम्स के अंदर। हाँ, क्या बोल रहे थे रोमा, कौन सा वाला? ACD। A B and D, 1 बोल रहे हो आप? नहीं, हम 3। 3 बोल रहे हो, ACD। हाँ ठीक है, मुझे भी 3 ही लगता है इसका। Ma'am, it will be 3, I think so too. Because option B is just talking about enabling legislation. It's not mentioning how women are involved in the process of legislation. So, गुड, मुझे भी 3 ही लग रहा है, लेट्स चेक। 054, इसका 4 है। ABC, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इनेबलिंग लेजिस्लेशंस, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। और तो 12th प्लान के अंदर व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इज स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड वुमेन, विच गिवन इंडिया का पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है किस तरह से रहता है, इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है। तो एनीवेज, चलो ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं कभी कभी। इसका आंसर 4 है, ठीक है, ABC। लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन, 054, हाँ 4 ही है इसका। ओके, then we have match list with list 1 with list 2, theory proposed and the thinkers। Okay, thinkers are Laura Mulvey, Gayatri Spivak, Bell Hooks and Nancy Cordero, जिनमें से आई थिंक आप लोगों ने सारों के सारों को पढ़ा है, एक्सेप्ट आई थिंक लॉरा मल्वी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। बिकॉज ऑफ द एलोकेशन ऑफ वर्क रोल्स, इन्फेंट्स यूजुअली ओरिजिनली आइडेंटिफाई विद द फीमेल पेरेंट। बताइए, ये नोट्स में से सीधा साधा इंक्लूडेड है, तो मैं आपको यहाँ पे एलिमिनेशन तो लगा करके नहीं दिखाऊंगी, बताओ मुझे कौन सा इन चार में से। ma'am, option D is Gayatri Spivak because she's talking about subaltern. No, no, just tell me about option A first. Okay, let's go one. Option A will be Nancy Chodoro, ma'am. Okay, ये इंक्लूडेड है नोट्स में से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। The idea of sisterhood is seen as an emotional appeal, masking the manipulation of middle class white women। बताइए। चलो, अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो, वैसे ये भी डायरेक्ट, Ma'am, it's bell hooks. या इट्स बेल हुक्स, ठीक है। तो एनीवेज, ये अगर बाकी लोगों ने ये नहीं भी पढ़ा है तो एलिमिनेशन से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। Male gaze sees the female body as something for the patriarchal society as a whole to watch, conquer and possess। Male gaze, अगर आपने लॉरा मल्वी की सिनेमा की थ्योरी के बारे में पढ़ा है तो उसमें थ्योरी ऑफ मेल गेज की बात करी गई है।
वो बेसिकली बोलती कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद हो सकता है दोबारा एग्जाम में आ जाए, वो नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे पढ़ लेना उसको, ठीक है। कि भाई क्या है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे हम आज के आप लोगों ने देखे होंगे आइटम सॉन्ग्स वगैरह किस तरह से होते हैं, ठीक है। बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइंग तरीके से वुमेन को पोर्ट्रे किया जाता है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट दी सॉन्ग्स, पूरा का पूरा जो आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है, चाहे वो एक्टिंग के अंदर हो, चाहे डांसिंग के अंदर हो, चाहे किसी भी चीज के अंदर। तो what Laura Mulvey talks about is male gaze. So for example, if a woman actor is performing on screen, उनके ऊपर 3 तरीके की मेल गेज ऑपरेट करती है, ऑब्जेक्टिफाइंग मेल गेज ऑपरेट करती है, ठीक है, सेक्सुअलाइज्ड मेल गेज ऑपरेट करती है। कौन कौन सी 3 तरीके की? फर्स्ट, जैसे मान लो अ फीमेल इज डांसिंग, उसके साथ उसका जो मेल को डांसर है, पहली गेज उसकी होती है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिफाइंग तरीके से एक सेक्सुअलाइज नेचर के अंदर, जहाँ पे विमेन की पूरी आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ उनकी बॉडी से डरा हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउ सो कॉल्ड सेक्सी शी इज, ठीक है, हाउ हॉट शी इज। उस तरीके से एक मेल गेज जो है पहली तो को एक्टर की, या फिर जो कोई भी को एक्टर को डांसर कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर सिनेमा के अंदर उसकी मेल गेज ऑपरेट करती है। दूसरी मेल गेज होती है कैमरा की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी आइटम सॉन्ग्स को ध्यान से देखोगे तो सी की उसके अंदर जिस तरीके से फीमेल को पोर्ट्रे किया जाता है और मेल को पोर्ट्रे किया जाता है, उन दोनों के कैमरा एंगल्स के अंदर कितना डिफरेंस होता है। जब वो कैमरा जो है वो फीमेल के ऊपर जाता है तो उनके बॉडी पार्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, ऑन हर ब्रेस्ट, ठीक है, कमर के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, या फिर बाकी जो भी आपकी पूरी बॉडी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, फेस के ऊपर फोकस कम होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब वो मेल को पोर्ट्रे करता है तो ज्यादा फोकस जो है उनके फेस के ऊपर होता है। सो मेल की आइडेंटिटी जो है वो उनके फेस से डायरेक्ट हो रही है, लेकिन वुमेन की उनकी बॉडी से हो रही है, ठीक है। और ये कोई मैं अपने आप से नहीं बना करके बोल रही हूँ, कोई भी गाना उठा करके देख लो बॉलीवुड का, या कहीं का भी उठा करके देख लो, आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये होगी दूसरी मेल गेज। और एक तीसरी मेल गेज जो है वो व्यूअर की है, अल्टीमेटली जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मेल व्यूअर की तीसरी गेज है, ठीक है। चाहे आप थिएटर में बैठ करके देख रहे हो, चाहे आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो, चाहे आप फोन के ऊपर देख रहे हो, चाहे आप कहीं कहीं पे भी देख रहे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से एक चीज होती है व्योरिज्म, ठीक है, इसको गूगल करके देखना तो आपको पता चलेगा कि जो व्योरिस्टिक गेज होती है वो ऑपरेट करती है, ठीक है। यहाँ पे मुझसे लिखा नहीं जा रहा, तो व्योरिस्टिक इसको गूगल कर लेना जा करके, ठीक है। तो ये 3 तरीके की मेल गेज जो है वो सिनेमा के अंदर वर्क करते हैं। ये सीधा साधा जो है, अगर मैं वो बोलूं बेसिक सा मतलब है लॉरा मल्वी की मेल गेज की थ्योरी का। दैट इज वाई ये मेल गेज पढ़ते ही आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगा कि दिस इज लॉरा मल्वी, ठीक है। Then we have popularized and developed the concept of subaltern. Very simple, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, so that is Gayatri Spivak. Very simple question overall. ठीक है, तो कौन सा बनता है इससे? Ma'am, one thing, ma'am, can you tell me the term that you just used? Ma'am, what was that heuristic ma'am, that you Heuristic talked about? gaze. V Heuristic. O U Y E R I S T I C. Heuristic. Oh, all right. Okay, thank you. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए का बन जाता है यहाँ पे 4, और देखो ए का 4 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर, दैट इज दिस, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बाकी भी चेक कर लो, चाहे तो बी का 3 है बेल हुक्स, ठीक है, सी का 1 है लॉरा मल्वी, एंड डी का है 4 गायत्री स्पिवाक। सो द आंसर बिकम्स 3। लेट्स चेक, दिस इज 066, 3 है इसका, ओके। Then we have question number 71. A feminist research begins with dash. Connection in principle to feminist struggle, often with intent not to change the basic structures of operation. Connection in principle to feminist struggle. Okay. Questioning and critiquing androcentric bias within the disciplines, challenging traditional researchers to include gender as a category of analysis, accepting the power balance between the research and the subject, traditional research that does not include epistemology, methodology, and method. बताओ। I'm number 2. नंबर 2। M2 तो सिंपल है, इसमें एक्सप्लेन करने की भी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। वी कैन इजिली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देख जरूर लेते हैं इसको। 032, हाँ इसका सेकेंड है, ठीक है। And we have who among the following argues that the abolition of the Hindu right of sati in India by the British
has been generally understood as a case of white men saving brown women from brown men. Ruth Vanita, Gayatri Spivak, Madhu Keshwar and Kamla Bishni. बताओ. White men saving brown women from brown men. मैम रूथ वनीता। ओके, बाकी लोग. देखो इसका 1 या 2 में से कोई होना चाहिए, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हिस्टोरियंस, रूथ वनीता एंड गायत्री स्पिवाक. और कुड बी कमला बशीन टू, आई डोंट नो. हालांकि ये क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए था, बट आई कांट रिमेम्बर एनीथिंग. ठीक है, मैंने रिवीजन नहीं करी है, तो मेरी रिवीजन आप लोगों के साथ में होती है क्लास में. चलो, अगर आई वुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इन एग्जाम ना. I have a feeling it is Gayatri Spivak. अगर मैं इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करती तो मैं भी गायत्री स्पिवाक ही करती. लेट्स चेक. 008. हाँ, इसका गायत्री स्पिवाक ही है. सिंपल सा चीज है, गायत्री स्पिवाक इज अ हिस्टोरियन. ठीक है, एंड एज अ बोल्टन हिस्टोरियन एट दैट. तो आप इससे लगा सकते हो. ओके, द आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, social norms are powerful अच्छा ये assertion और reason है. ठीक है, social norms are powerful prescriptions reflected in formal structures of society and in its informal rules, beliefs and attitudes. पहली बात तो जब assertion और reason के क्वेश्चन है, बहुत बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ा. ठीक है, बिकॉज ये फ्री के नंबर होते हैं, तो इसमें अगर आपको 2 मिनट लग भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके. One reason that female genital mutilation continues to be practiced is that parents believe that they are acting in the best interests of their daughters, as young women who are not cut will not be able to marry in their communities. बताइए. Both are true and R is the correct explanation of A. Both are true, R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, R is true, A is false. देखो इतना तो साफ सीधी बात है कि ए तो सही है, ये इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है ना. तो जहां पे ए फॉल्स बोला जा रहा है, पहले तो मैं उसको काट दूं, तो 4 तो गया. ठीक है, अब आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शंस, जिसके लिए आपको सेकंड वाले पे दिमाग लगाना ही पड़ेगा. और ये रीजन बता रहा है इसका. दीज आर नॉट सिंपल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, बट वो इंटरडिपेंडेंसी देख रहा है इसके अंदर. राइट. So one reason that female genital mutilation continues to be practiced is that parents believe that they are acting in the best interests of their daughters, as young women who are not cut will not be able to marry in their communities. Is this part of social norms, female genital mutilation? बताओ, कुछ तो बोलो. Ma'am, I don't think it's part of the understanding of social norm. Okay.
देखो मुझे भी इसका सेकंड लग रहा है, दैट बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन दोनों स्टेटमेंट्स में ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी आपको नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, यस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज अ पार्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, स्पेशली व्हेन द स्टेटमेंट वन इज टॉकिंग अबाउट कि सोशल नॉर्म्स आर प्रैक्टिस लाइक दिस। तो स्टेटमेंट टू ये एक्सप्लेन नहीं कर रही कि सोशल नॉर्म्स क्यों प्रैक्टिस किए जाते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सोशल नॉर्म। So this is my understanding, but let's see. 087 इसका वन है। एज ऑलवेज रीजन और एसोसिएशन के क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग रहे। सो दिस इज आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई डोंट नो हाउ, बट वही है कि ये क्वेश्चंस पता नहीं किस तरीके से फ्रेम करते हैं यार ये लोग। वन रीजन दैट, अच्छा ये क्लास खत्म होने वाली है, एक बार दोबारा आ जाओ फिर लेट्स डिस्कस दिस।